So today's session is for uh, walls and how we'll add extra details in our walls. So till now we have learned how to create a basic wall. Okay, so how to create a structure of a wall and how we can edit its edit properties if we are in a wall, like if this is one particular wall, and if we are in edit type, how we can edit that particular properties, and then how we can edit its instance properties as well. Okay, so now we'll be learning how we can detail a particular wall, how we add further finishes, skirting to a wall. So let's say this I have created last time as a basic wall, 75 mm thick partition wall. Now we learn how to add finishes on a particular wall. So this is my 75 mm thick partition wall, and now if we talk about what finishes would appear on a particular wall, go to its edit type. Here you can see in center there is a structure and material is metal stud. Here over here you can see there is a exterior side and below there is a interior side. And another important thing, if you see over here, the type is displaying over here. Total thickness is 115 mm, resistance is this much and thermal mass is this much. जैसे जैसे हम इसमें layers add करते जाएंगे, आप ये नोटिस करेगा कि इसका रेजिस्टेंस और थर्मल मास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है while adding several materials on it. So एक एग्जांपल और देती हूँ. Let's say if I choose a brick material from here. So brick common. Okay, you can see the resistance for a brick is this much and thermal mass is this much. So whatever you material you are picking or whatever finishes you are adding, आपका resistance and thermal mass keeps on modifying as well. So let, for now let's just keep it to brick common, that is itself 115 mm. इसको मैं cancel करके brick wall ही ले लेती हूँ. एक और important चीज़ है, if you are working in a loop, so you want to select these 4 walls. आप इन walls को कैसे select करेंगे? आप control के साथ इसको select करते हैं, right? But if you want to select the wall with one go, so उसके लिए आपको क्या करना है? Just hover over your mouse on a particular wall, on any wall, and press tab. जैसे ही आप tab press करेंगे, tab की, तो आप देखेंगे and then click ऑन द माउस, तो आप देखेंगे जितनी भी वॉल्स उस लूप में आ रही होंगी वो सारी की सारी एक बार में सेलेक्ट हो जाती हैं. सिमिलरली ओवर हियर अगर आपको देखना है कि कौन सी वॉल कनेक्टेड है लूप में, सो यू कैन सी टैब के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैड फाइल भी है. यू कैन सी देयर इज अ ग्रिड लाइन ऑल्सो, देयर इज अ कैड फाइल ऑल्सो. सो टैब की इज एक्सट्रीमली important in Revit. So now I want to change the type of these 4 walls. So put your cursor on any one wall and press tab. आप देखेंगे आपकी चारों walls एक साथ highlight हो गई and now click on that wall. Now if I go to my edit type, या फिर आप यहाँ से भी इसका type change कर सकते हैं. Let's keep it to 115 mm thick brick wall. So it has converted to brick wall. अभी के लिए हम इसको shaded कर लेते हैं. So right now it is a brick wall. And now edit type. एंड राइट नाउ आई एम डुप्लीकेटिंग दिस वॉल ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके जैसे ही मैं फिनिशेस ऐड करूंगी. डुप्लीकेट 115 mm थिक ब्रिक वॉल विद फिनिशेस. Okay, go to its edit type and over here the structure is brick common and Revit आपको एक hierarchy देता है, is 1 2 3 4 5 and then membrane layer. So this hierarchy is extremely important. If you are keeping a certain finish, so you will always keep it in a finish 1 and 2. ये जो numbering है ये मैं आगे बताऊंगी कि ये इसका क्या benefit होता है Revit की modeling में. Why is it like 1 2 3? Why is it not like
फिनिश को हमने 1 नंबर क्यों नहीं दिया, वो भी आपको आगे जब आप उसको ज्वाइन करेंगे वॉल को तब आपको पता चलेगा। सो स्ट्रक्चर इज ब्रिक कॉमन 115 mm। अब हम यहाँ पे एक और लेयर ऐड करेंगे। क्लिक ओवर हियर एंड गो टू इंसर्ट। यहाँ पे आपकी एक लेयर और ऐड होती है। एंड नाउ वी लेट्स कीप इट टू सबस्ट्रेट एंड यहाँ पे हम इसको एज अ प्लास्टर रखते हैं। सो मेरे पास कॉन्क्रीट मटेरियल है। ओके, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। Duplicate material and acid, I'll keep it to a plaster or a mortar. Okay, this has been created. मेरे मॉडल में वो चीज़ विजिबल हो सके, so I'm adding a surface pattern as well and a cut pattern as well. So for cut pattern right now, let's say we are picking this hatch. अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि I'm keeping it to some black color and background I'm keeping it to solid fill of light gray color. एंड देन फोरग्राउंड में मैं कुछ भी पैटर्न ना देके सिर्फ बैकग्राउंड में सिर्फ पैटर्न दे रही हूँ, सॉलिड फिल नहीं कर रही हूँ। द सेम सैंड डेंस, okay, and of some different color so that you can differentiate easily of pink color. Okay, apply and okay, and the thickness of this is let's say 15 mm. अभी मैंने सिर्फ एक्सटीरियर साइड ऐड किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट हैज़ बीन अपडेटेड ओवर हियर इन द प्रीव्यू एंड ओके। सो आप देखेंगे जैसे ही ये वॉल का टाइप चेंज हुआ, इसमें एक प्लास्टर की लेयर ऐड हो गई है। सो इफ आई गो ऑन 3D यू कैन सी द प्लास्टर लेयर हैज एडेड। अगर आप इसमें देखें जो मैंने इसमें टेक्सचर दिया था ऑफ पिंक सैंड, दैट इज विजिबल। एंड इफ आई वांट टू कट दिस पर्टिकुलर वॉल, मैं इन सबको टैब के साथ सेलेक्ट करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्शन बॉक्स। द शॉर्टकट इज BX। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मैंने पैटर्न दिया था दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, और बाहर जो मैंने दिया था पैटर्न दैट इज ऑफ पिंक कलर। एंड नाउ वील ऐड अनदर लेयर। अब हम इंटरनल साइड प्लास्टर ऐड करते हैं। एडिट टाइप, go to its edit, and we will insert another layer towards the interior side and insert, इसको हम डाउन कर लेते हैं and we add it as a substrate. The same material, plaster and mortar, okay, of the same thickness 15 mm. यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चरल मटेरियल इज ओनली और ब्रिक कॉमन, जो हमने स्ट्रक्चर पार्ट में रखा है। The moment I'll press OK, so the layer has been added. Apply and OK. So now if you see in your 3D, another layer has been added, जो पहले आपको brick दिख रहा था, right? And now we'll add a finish over it. खाना बना रही थी। Yes. खाना बनाया? Gas is not working. कब से गया गैस? कब से नहीं है, वो हस्बैंड बोल रहा है। हाँ, पता नहीं, आधा घंटा लगेगा। इसको क्या कर रही है, पैकिंग करके कार्गो में डाल रही है। अच्छा, मैं सोचा वैसे ही क्या कर रही हूँ मैं। नहीं, कार्गो का जेन्युइन है। आपने कभी किया है कार्गो? जेन्युइन है ना? यस। In how many days it will reach? कौन सा आपको चाहिए? इनको कार्गो। Okay, sorry. So this is one wall. Now we'll add another finish. Go to its edit type. We are inserting another layer as a finish. Insert.
and finish one. इसमें हम एक मटेरियल डिसाइड करेंगे. लेट्स से if I have terracotta over here, okay, because it is of red color आपको easily visible होगा, so I am choosing this. The pattern is of rectangular 300 by 500 of black color और इसमें हम अभी background fill देते हैं so that it will be visible in your 3D. And cut pattern, let's say we are choosing this blockwork high density और इसको भी हम एक different color देते हैं so that it will be appear on the screen. Solid fill, okay, and then okay, apply and okay, and it will be of thickness of, let's say, 25 and okay. So another layer has been added. Apply and okay. This layer has been added. अगर मैं इसको hidden line में रखती हूँ, so you can see the colors which we are adding. Go to your 3D part. Another layer of terracotta has been added. So if I keep it on hidden line, so you can see whatever color I have applied, it will start appearing. Whatever pattern I have applied, it will start appearing. Correct? And now level 0, we will apply another layer. Go to its edit type, edit, bring it down, and we will keep it to some finish 2. And इस टाइम हम कोई मटेरियल चेंज कर देते हैं. लेट्स कीप इट टू सम वुड. इसके लिए भी मैं एक डिफरेंट पैटर्न ले लेती हूँ. लेट्स से दिस ट्रायंगुलर. Apply and okay, and this is of same thickness. Let's say keep it to 30 and okay. Apply and okay. So आप देख रहे हैं जैसे ही आप उसमें finishes और layers add करते जा रहे हैं, it start appearing in your plan view. So if I go to 3D, so आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वुडन का जो भी मैंने पैटर्न स्पेसिफाई किया था, इट इज कमिंग ओवर हियर. कट पैटर्न हमने जो स्पेसिफाई किया था, कट पैटर्न इज एग्जैक्टली कमिंग लाइक दैट. सिमिलरली इफ वी गिव अ कलर टू अ पर्टिकुलर वॉल, सो उसमें भी वही कलर और वही पैटर्न विजिबल होता है. सो गो टू योर शेडेड पार्ट, यू कैन सी एंड कंसिस्टेंट कलर. एंड रियलिस्टिक में आपको रियलिस्टिक व्यू मिलेगा. क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें यही सेम फिनिश बाकी सारी वॉल्स पे भी अप्लाई करनी है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू फ्लिप और स्विच द फेसेस ऑफ द फिनिशेस, ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इंटीरियर फिनिश बाहर की तरफ आए, एक्सटीरियर अंदर की तरफ आए और वाइस वर्सा. सो व्हाट यू कैन डू, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर वॉल एंड प्रेस स्पेस बार. जैसे आप स्पेस बार प्रेस करते हैं, यू कैन सी द फिनिशेस आल्सो फ्लिप्स. उसका एक्सटीरियर साइड अंदर की साइड आ गया है और इंटीरियर साइड गोज अपवर्ड. अगेन आई विल प्रेस स्पेस बार. सो सेलेक्ट द वॉल, press space bar, so it is appearing. And now हमें same finish अपनी तीनों layers, तीनों walls पे apply करनी है. तो select those 3 walls and change its type. 115 mm thick brick wall with finishes. So you can see सब पे same finish apply हो चुकी है. And here you can see आपका जो भी structure part है,
इट इज गोइंग विथ स्ट्रक्चर, और जैसे ही आपका सबस्ट्रेट है, इट इज मर्जिंग आउट विथ सबस्ट्रेट एंड फिनिशेस ऑटोमेटिकली मर्जेस आउट विथ फिनिशेस. सो दैट्स हाउ दैट हायरार्की वर्क्स. अगर मैं जैसे ही इसको सबस्ट्रेट को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती हूँ, गो टू इट्स एडिट टाइप एंड लेट्स से मैं इसको भी स्ट्रक्चर में रखती हूँ. ओके, अप्लाई एंड ओके. सो अभी यहाँ पे सही से विजिबल नहीं हो रहा है. इसका मैं एक सेक्शन कट करती हूँ. Go to section. I've created a floor over here. The moment I'll give a command of join geometry, सो आप देखेंगे उसका जो भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो फ्लोर के स्ट्रक्चर के साथ लिंक हो रहा है, जो फिनिश वाला पार्ट था वो उसकी फिनिश के साथ लिंक हो रहा है. तो जॉइंट ज्योमेट्री में आपकी हायरार्की मैटर करती है इन विच यू आर कीपिंग दैट. सो लेट्स से आई एम चेंज दिस अगेन टू सबस्ट्रेट. दिस वॉज अर्लियर स्ट्रक्चर. नाउ इसको प्लास्टर या मोर्टार को मैं वापस से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करती हूँ. ओके, अप्लाई एंड ओके. इसको वापस से अनजॉइन करते हैं. ओके, अब मैं इसको अगर ज्वाइन करती हूँ, सो यू कैन सी वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर के साथ मर्ज हो रहा है, और जहां मैंने उसको फिनिश पे रोका है वो उस फ्लोर की फिनिश के साथ मर्ज हो रहा है. तो दैट्स हाउ दैट हायरार्की मैटर्स कि आप कौन सी लेयर किस फिनिश, किसको सबस्ट्रेट में रख रहे हैं, किसको आप स्ट्रक्चर पार्ट में रख रहे हैं. ओके. Another important thing, I've chosen some material over here. So if you go to its edit type, you can see उसका resistance बढ़ चुका है and thermal mass has also increases. So interviews में कई बार questions भी पूछते हैं, tell a specific resistance of a wall or a thermal mass of a wall. So you can go over here and you can see जैसे ही आप उसमें कोई भी finish add कर रहे हैं तो उसमें resistance या thermal mass कितनी value show कर रहा है, and you can give your answer. उसको कहीं से भी हमें बैठ के calculate नहीं करना होता है, Revit gives you automatically. यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? Now I'm adding door to this particular wall and adding a window. Now go to your 3D, you can see वो automatically आपकी finishes और जितना भी structure part था उसको automatic cut करता है. So let's say I'm increasing the thickness of a wall. Go to its edit type. For now I'm increasing the thickness. Let's say keep it to 300 and OK. Apply and OK. और इस door type को हम change कर लेते हैं.
Okay, and now go to its edit type, edit. Here it says at insert, do not wrap, at ends, none. अब इन दोनों का फर्क क्या है? Why these are two different options, at insert and at ends. So now we look forward for these things. अब मैं इस wall को यहाँ से भी detach कर रही हूँ और let's just copy this part. The shortcut for copy is CO. Okay, now we will look the end of the wall और जहाँ पे भी उसमें inserts आ रहे हैं, like we are inserting a door or window or any element within the wall. So you can see वो कैसे work करता है. Select this particular wall, go to its edit type. The moment I set a setting for at insert, let's say I want to keep my interior finish overlapping. Okay, apply and okay. You can see मेरी finish वैसे ही turn हो गई, right? Now what I'll do, मेरी finish वैसे ही turn हो गई. Now what I'll do, I'll insert my exterior finish. Sorry, select that wall, go to its edit type, edit, keep it to exterior, okay, apply and okay. So आप देख सकते हैं exterior finish वहाँ पे आके wrap हो गया, right? Now again go to its edit type and let's keep it to both for now. And okay, apply and okay. So दोनों की दोनों finishes मेरी उसके साथ जैसे ही door frame आ रहा है उसके साथ wrap हो रही है. Got it? Next is what coming is at end. अब आप देख सकते हैं मेरी दोनों finishes wrap हो रही हैं with window as well. मेरी finish भी वैसे ही वैसे wrap हो रही है. Now go to its edit type, select that particular wall, go to its edit type, edit, and now what I'll do, I'll choose a particular finish at end. So इसको मैं finish में ही रखती हूँ, substrate, and this was my finish one and at end. Now I want my exterior part at end. आपको यही प्रीव्यू में दिख रहा है कि एक्सटीरियर पार्ट आके उसके साथ इंटीरियर फिनिश पे रैप हो रहा है. ओके, अप्लाई एंड ओके. सो यू कैन सी ओवर हियर योर एक्सटीरियर फिनिश इज रैपिंग एट द एंड ऑफ योर वॉल और वो इंटीरियर फिनिश पे आके एंड हो रही है. नाउ इफ आई विल चूज माई इंटीरियर फिनिश टू रैप एट एंड्स, गो टू इट्स एडिट टाइप, चूज योर इंटीरियर फिनिश, ओके. यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं आपकी इंटीरियर फिनिश इसके एंड पे रैप हो रही है. ओके एंड ओके. सी आपका अब आपको उसको डिफरेंस विजिबल हो रहा होगा, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. आपको ये खुद से ट्राई करना होगा एक बार, और ना समझ आए तो आप वापस से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गो टू इट्स एडिट टाइप, एडिट, सी द प्रीव्यू, और मैं इसको यहाँ पे सेक्शन में रखती हूँ. यू कैन सी ओवर हियर whatever finishes are coming. आप जैसे ही जिस फिनिश पे क्लिक करते हैं वो पार्ट हाईलाइट हो जाता है. सबस्ट्रेट पे करेंगे, दैट इज हाईलाइटिंग ओवर योर. स्ट्रक्चर इज दिस, सबस्ट्रेट इज दिस, फिनिश इज दिस. ओके, सो अब हमें इसमें स्कर्टिंग ऐड करनी है. स्कर्टिंग हम कैसे ऐड करेंगे? ईदर वी ऐड अ स्वीप ओवर हियर, लेट्स गो टू स्वीप. यहाँ पे अभी कोई भी प्रोफाइल नहीं है. मैं कोई भी प्रोफाइल, अगर मेरे पास उसकी फैमिली है हम उसे इंसर्ट करा सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्रोफाइल खुद से बनाना भी सीखेंगे. सो इन 3D राइट नाउ इट इज दिस. सेक्शन बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ. सॉरी, ग्रीन ग्राम किधर है? ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम यू वांटेड टू शो. आंटी राइट नाउ आई एम टेकिंग अ क्लास. Sorry. It is in mute? No, it was in mute. Okay. When you finish, you get the green gram. Yeah, I'll come to your room. Okay.
सो दिस इज अ पर्टिकुलर फिनिश. अब हम इसमें स्कर्टिंग ऐड करेंगे. गो टू योर न्यू फैमिली. जैसे ही आप फैमिली ओपन करेंगे यू कैन सी अ टेम्पलेट, रेविट फैमिली टेम्पलेट्स ओवर हियर. तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप किस फैमिली के लिए कौन सा टेम्पलेट चूज करते हैं, उसी टेम्पलेट में ही वर्क करना बेस्ट होता है, क्योंकि वो प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली सेटिंग्स होती हैं एंड यू कैन क्रिएट योर ओन फैमिलीज ओवर देयर. सो अगर हमें कोई भी प्रोफाइल ऐड करनी है, इट्स अ 2D प्रोफाइल, सो वील ऑलवेज गो टू मेट्रिक प्रोफाइल टेम्पलेट. तो आपको हमेशा टेम्पलेट याद रखना कि किस टेम्पलेट में आप कौन सी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आप बात करें डोर की, तो देयर इज अ टेम्पलेट फॉर मेट्रिक डोर, देयर इज अ टेम्पलेट फॉर मेट्रिक विंडो, बैलिस्टर, डक्ट, स्ट्रक्चरल ट्रसेस. सो हर फैमिली के लिए अलग अलग टेम्पलेट होता है. सो राइट नाउ वी आर चूजिंग मेट्रिक प्रोफाइल एंड ओपन. So this is appearing, if you can see, this is a reference plane 1, and this is a reference plane 2. If you select that particular plane, so the name is center. Okay, its reference is center left and right, and if you click on this, this is another center front and back, and its reference name is center front and back. अब हम कोई भी 2D प्रोफाइल बनाते हैं, so it always works as a quadrant. So if I write a text over here, tx for text, so let's say it's a first quadrant. Second, third, and fourth. Can I borrow your stool to climb into my cupboard? And now I'll make a profile over here. I'm just making a simple rectangular profile for skirting, and go to your create. Here you get a line command. The shortcut for line is li. जैसे ही आप उस कमांड में आते हैं तो आपको एक ड्रॉ का पूरा पैलेट मिलता है, वॉट एवर शेप यू वॉन्ट टू क्रिएट. सो राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग जस्ट माई rectangular profile. Here you can choose your lines as well. Right now keep it to profile only, not invisible line. That we'll discuss further, what how invisible line works. So I'm keeping a rectangle over here. मैंने just एक random rectangle draw कर लिया. Now select a particular line and you can say, let's say my skirting is 10 mm thick, and pick another line, and let's say the height would be 150. So just a 2D profile. इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आपके रेफरेंस प्लेन होते हैं फैमिली में, आपको उसमें अपनी जो भी स्केच लाइंस या जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं, आपको उसको हमेशा लॉक करना होता है. Like this line will always start from this particular plane and this from this plane. And let's save it as by the name of skirting only. Save as a family. अभी पूछ रहा है आपको कहाँ पे सेव करना है, सो यू कैन गो टू एनी पर्टिकुलर फोल्डर. सो मैं इसमें एक फैमिलीज का फोल्डर बना लेती हूँ. जो भी हम फैमिलीज लर्न करेंगे दैट विल बी इन दिस सेम फोल्डर. Save as skirting. And always keep your options to 1. जितना मैक्सिमम नंबर होगा उतनी नंबर्स ऑफ फाइल आपकी बैकग्राउंड में सेव होती रहती हैं. Always keep it to 1. Okay. And then save. So the name has changed over here. This is skirting now. आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं.
अब होता है कि Revit में there is a term called parametric family. Okay, if there are a certain parameters set inside a family, that family has become parametric. So हमें अलग अलग projects में अपनी skirting height modify करनी है every time. So what you can do, you can specify a parameter for this particular line. Right now it is 150. हमने एक dimension दिया and we will specify a parameter over here, create parameter, and we say, let's say this would always be my skirting height. And it's a type parameter. One is type parameter, one is instance. अगर आप instance में रखेंगे तो आप उसके multiple type नहीं बना सकते हैं, आप सिर्फ उसको property palette में instance में जाके change कर सकते हैं. But अगर आप उसे type में रखेंगे, so you can create a multiple types. So हमारी अगर skirting की height change होगी, obviously उसका type भी change होगा. So we keep this parameter to the type of a family, okay, and just lock that parameter. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा skirting height 150 mm right now, it has become a parameter. अब check कैसे करना है कि मेरा parameter work कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So go to family types. यहाँ पे आप देख सकते हैं your parameter has created. The name मुझसे गलती हो गई है टाइपिंग में, so I'll go over here and go to my edit parameter and I can specify the correct spelling. Skirting, thank God सही गलती हुई. तो आपको पता भी चल सकता है कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो रही तो आप उसको कैसे सही भी करेंगे. So let's change the value to 200. Apply and OK. ठीक है, अब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे वो मेरा रेक्टेंगल की हाइट बढ़ गई है. ओके, सो स्कर्टिंग हाइट पैरामीटर समझ आ गया ना कैसे बनाया. वो अभी जब मैं प्रोजेक्ट में इंसर्ट कराऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा क्लियरली. सो दिस इज स्कर्टिंग हाइट. यहाँ से ओके, सॉरी, now my screen is visible. So let's say this parameter has created, मैंने इसे लॉक कर दिया है. and now if I go to my family types, so you can see this has created. अगर इसमें कुछ गलती हो गई है, so you can edit from here whatever name you want to give. let's say height को हम ht लिख देते हैं. okay, so यहाँ से मैं वैल्यू चेंज करती हूँ. again I am keeping it to 150. apply and okay. so this is one thing. आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल की लेंथ हाइट कम ज़्यादा हो रही है. ये मेरा हमें से फ्रीज रखना है कि इट विल ऑलवेज बी 10 mm. सो वी कैन लॉक दिस डिस्टेंस फॉर दीज टू लाइन्स. अब ये लाइन कोई भी मूव नहीं कर सकता है. इट विल ऑलवेज बी 10 mm. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज इफ आई गो ओवर हियर, अब आपको अपनी स्कर्टिंग के मल्टीपल टाइप्स बनाने हैं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं. क्रिएट अ न्यू टाइप. right now this type is 150 mm high. okay, create another two. If you don't like only then how you make you know no microwave में कर सकते हैं या कुकर में. apply and okay. So your two types of skirting has created. one is 200 mm high and another one is 150 mm high. apply. जैसे मैं अप्लाई करूंगी ऑटोमेटिकली मेरी स्कर्टिंग की हाइट चेंज हो रही है. नाउ आई विल इंसर्ट इट इनटू माय रेविट. सो लोड इनटू प्रोजेक्ट. it has been loaded over here. go to its edit type. okay, see your section, edit, और हम स्वीप में जाके we'll add a profile, add
this is right now default, and from here you can choose skirting 150 mm high or 200 high. So right now I'm choosing 150 mm high. Here you can specify a material. Let's say एक नया मटेरियल देने के लिए let's say I'm giving it window frame है मटेरियल का नाम, but let's say give it this only. Okay, the moment I apply, so you can see the skirting has inserted over here, right? अगर मैं इसमें distance देती हूँ 50, apply, so वो ऊपर move हो रहा है, right? If I give a distance of 300, apply, वो और ऊपर move हो रहा है. If I let's say give a distance of -100, apply, अब आप देख रहे हैं वो नीचे जा रहा है. Cancel. So let's keep it to 0. Starting from the base of the wall or top, उसका मतलब क्या है? इसको पूरी वॉल को अगर आप देखें, सो यहाँ पे मैं सैम्पल हाइट इसकी चेंज कर लेती हूँ. लेट्स से कीप इट टू 400 ओनली. एंटर, ताकि आप उसका टॉप और बेस देख सकें. नॉट 400, आई कैन कीप इट टू 1000 ऑल्सो. सैम्पल हाइट. एंड नाउ अगेन गो टू योर स्वीप. दिस इज इफ यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम टॉप, तो वो आपका स्वीप टॉप से स्टार्ट होगा. सी, आपको यहाँ पे दिख रहा है. डिस्टेंस आप जैसे ही देंगे माइनस लेट्स से 500, वो अप्लाई, वो वैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा. इफ आई कीप इट टू बेस एंड डिस्टेंस वुड बी 0 एंड अप्लाई, वहीं पे आके सेट हो गया. ओरिएंटेशन यू कैन स्पेसिफाई फ्रॉम हियर, आपको कैसे रखना है. इफ आई कीप इट टू पैरेलल टू ग्राउंड, अप्लाई. सो अभी वो वॉल पे ही है. ऑलवेज कीप इट टू परपेंडिकुलर. साइड आपको चूज करना है एक्सटीरियर और इंटीरियर. सो इफ यू कीप इट टू एक्सटीरियर, इट विल बी एक्सटीरियर. इफ यू कीप इट टू इंटीरियर एंड अप्लाई, इट वुड बी ऑन योर इंटीरियर साइड. Let's keep it to exterior for now. And offset you want to give, let's say I'm giving a offset of 50 mm and apply. So वो आपकी wall से उतना दूर हो रहा है. So offset हमें देना नहीं है skirting में. And 0. And setback, let's say I'm giving a setback of 100, or let's keep it to 100 for now and apply. So वो उसी manner में आपका move होना start होता है. Keep it to 0 only. Another skirting I'm inserting, add, and here I am adding a 200 mm high मटेरियल. हम इसका कोई और सा स्पेसिफाई कर लेते हैं सो दैट कलर वुड बी विजिबल. लेट्स कीप इट टू अर्थ फॉर नाउ. ओके, मैं डिफरेंट मटेरियल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अलग अलग कलर्स विजिबल हो. नथिंग एल्स. ऐसा नहीं होता है कि स्कर्टिंग का यही मटेरियल होता है. सो लेट्स कीप इट टू इंटीरियर पार्ट एंड अप्लाई. सो आपकी एक और स्कर्टिंग यहाँ पे ऐड हो गई. ओके फॉर नाउ. किस चीज़ की वार्निंग आ रही है? उसको डिलीट कर दिया मैंने. सो इफ यू गो टू योर 3D पार्ट, यू कैन सी आपकी स्कर्टिंग अप्लाई हो चुकी है दोनों साइड पे. And if you see a section over here, you can see your skirting is coming, right?
सो जहां जहां आपका वो वॉल टाइप आ रहा था, आपकी स्कर्टिंग उसी मैनर में वहां वहां रन हो रही है। जहां जहां मेरा वो वॉल टाइप आ रहा है, वहां वहां मेरी स्कर्टिंग उसी मैनर में रन हो रही है। इफ द ऑफसेट इज लेट्स से -467, तो मेरी स्कर्टिंग उसी मैनर में नीचे रन हो रही है। इफ इट इज कमिंग एट बेस ऑफसेट 00, वहां ही स्कर्ट हो रही है। नाउ इफ आई कीप इट टू वेरेवर द वॉल इज गोइंग, आपकी स्कर्टिंग वैसे वैसे रन होगी। दिस इज वन मेथड ऑफ अप्लाइंग स्कर्टिंग। अब सोनाली का क्वेश्चन था कि अगर अभी जो हमने उसको एक वी जस्ट मेड अ रेक्टेंगल ओवर हियर और वो वैसे ही रन हो रहा है। इट इज अ प्रोफाइल फैमिली, 2D प्रोफाइल फैमिली। नाउ वी लर्न हाउ टू मेक अ कोपिंग ऑन अ वॉल। सो मैं इसको अगेन, हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप इस सेक्शन की बात करें, दिस इज वन सॉरी, दिस इज वन फैमिली ओवर योर स्कर्टिंग, उसके अलग अलग टाइप थे। जैसे ही द मोमेंट आई फ्लिप दिस पार्ट, सेलेक्ट द होल थिंग, और इसको मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। फॉर नाउ आई एम रिमूविंग द कॉन्स्ट्रेंट and I am keeping it to the second quadrant. Now load into the project, override the existing version. So if you see the section, आपका similarly जो wall का face आ रहा था, उसने उसी second quadrant में उसे run कराया है। Next important thing, if I keep it to third quadrant, move to the third part, remove constant for now, and now load into your project, override the existing version. If you go to your section, उसने similarly मेरी skirting को उसी third quadrant में, उस face के third quadrant से run कराया है। Now if I keep it to the fourth quadrant and move it to fourth, and now when I load into my project, override the existing version. So if you see the section, उसने उसी face से, जो उस wall का face pick कर रहा था, उसके fourth quadrant पे उसे run कराया है। वापस से मैं इसे Control Z करती हूँ। It was here only. Load into the project, override the existing version. If you go to your section, so उसी मैनर में वो सेम वैसे रन हो रहा है। सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ 2D प्रोफाइल फैमिली, क्वाड्रेंट्स मैटर्स कि आपको किस क्वाड्रेंट में उस पर्टिकुलर फैमिली को रखना है। एंड नाउ वी लर्न अबाउट द कोपिंग। सोनाली का क्वेश्चन था कि अभी तुमने एक रेक्टेंगल डब्बा बनाया था, वो प्रोफाइल वर्क कैसे कर रही थी। वो हम एक कोपिंग फैमिली भी देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज करती हूँ, save the family, and we'll create another metric profile family for the coping. And choose a template of metric profile again and open. Now I'm making a profile for coping over here. The shortcut for line is LI. Let's keep it to, for now, 10 mm. Okay, this profile has been created. Let's say save it as a name of coping. Option is 1. अभी मैं इसे लोड नहीं करा रही हूँ, पहले मुझे दिखाना है कि ये रेविट में आपको कहाँ विजिबल होता है कि आपकी फैमिली कहाँ पे लोड होके पता चलता है। सो गो टू योर लेवल 0, मतलब हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं। Go to your project browser. Here it comes a family, what we can say, a tab.
आप इसको जैसे ही इसमें ऐड करेंगे आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखती है। सो मैंने स्कर्टिंग जितनी भी आपकी प्रोफाइल बेस्ड फैमिलीज लोडेड हैं आपके प्रोजेक्ट में, दोज आर विजिबल ओवर हियर। स्कर्टिंग आई हैव एडेड। सो मेरी स्कर्टिंग की एक और आपको एज अ लोडेड प्रोफाइल फैमिली इट इज विजिबल ओवर हियर। यहाँ से आपको इसका एक नया टाइप भी बनाना है, यू कैन क्रिएट। यहाँ से आप उसको वापस से जाके एडिट भी कर सकते हैं, आपकी फैमिली वापस से ओपन हो जाएगी, वो प्रोफाइल बेस्ड फैमिली। आपको ज़रूरी नहीं आप उस फोल्डर पे जाके उस लोकेशन पे ही ढूंढे, आपके प्रोजेक्ट में वो लोडेड है तो आप वहीं से ही उसको फौरन के फौरन एडिट कर सकते हैं। If you want to create a new type, you can create a new type over here. Let's say 300 mm high skirting. तो आपका एक नया टाइप भी बन जाता है। अब जैसे ही मैं अपनी कोपिंग की फैमिली लोड कराऊंगी, दिस इज माय कोपिंग फैमिली, लोड इनटू द प्रोजेक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कोपिंग की प्रोफाइल, कोपिंग फैमिली is added in your profile under your profile tab. Now go to your 3D part or a section, select that particular wall, go to its edit type, and again we add another sweep over here as a name of coping. और जो हमने 300 mm हाई बनाया था एक और टाइप स्कर्टिंग का, वो भी यहाँ पे आपको विजिबल है। कोपिंग, सॉरी इसको नहीं एडिट करना था, मुझे एक नया ऐड करना है। ऐड अ न्यू प्रोफाइल, और यहाँ से आप लोड प्रोफाइल भी कर सकते हैं। जिस भी फोल्डर में आपकी वो फैमिली रखी है आप डायरेक्टली यहाँ से लोड कर सकते हैं इफ इट इज नॉट लोडेड इन योर प्रोजेक्ट। ऐड अ कोपिंग प्रोफाइल ओवर हियर, अप्लाई, ओके, cancel. Let's keep it at a distance of 2400. Apply and OK. So a coping has been added to your wall. इसकी मैं हाइट अभी के लिए 3000 कर लेती हूँ, सैम्पल हाइट। गो टू स्वीप पार्ट, अ कोपिंग प्रोफाइल हैज बीन एडेड। हमने उसको 24 mm हाई डिस्टेंस पे रखा है। और इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ मटेरियल यू कैन प्रोवाइड। सो लेट्स प्रोवाइड, अभी मुझे यही दिख रहा है, अ ग्रीन कलर। ओके ओके ओके, apply and OK. So you see a coping profile has been added. अगर मेरा डोर यहाँ से रिमूव होगा तो वो थ्रू आउट रन करेगी, वापस से मेरा डोर आएगा तो प्रोफाइल ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। अगर मैं इस प्रोफाइल को इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देती हूँ, लेट्स से ऑफ 2700, गो टू इट्स एडिट टाइप, स्वीप्स, लेट्स से स्पेसिफाई अ डिस्टेंस ऑफ 2700, अप्लाई एंड OK and OK. So you can see your profile is running above your door and windows. So it is coming at one side. आपको दोनों साइड रन कराना है, you can run. And now the main part is, this is one thing. My profile is coming like this. If I flip it over to my second quadrant, DM for draw mirror axis, अभी के लिए मैं इतना रखती हूँ। Load into project, override the existing version and its parameter. For now, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ओके, नाउ लोड इनटू द प्रोजेक्ट, override the existing version. इफ यू गो टू सेक्शन, वो एज इट इज आपकी वैसे ही रन हो रही है वॉल को कट करके। अब मैं इसको ये पार्ट रिमूव करती हूँ यहाँ से, LI for line, and now load into your project, override the existing version, go to your 3D. अब वो उस फेस के अंदर साइड रन हो रही बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट प्रोफाइल टू द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो इफ आई कीप इट टू थर्ड क्वाड्रेंट, DM, uncheck the copy part from here, select those line, DM,
untick the copy, and now load into the project. You can see it is coming downward. Now if I keep it to fourth quadrant, DM, load into the project, override the existing version and its parameter. So it is coming in the fourth quadrant of that part. मैं इसको वापस से वैसे ही कर देती हूँ. In the first quadrant, load into the project, override the existing version and its parameter. So it is running in that manner only. सो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट उस जहाँ से उसको रेफरेंस प्लेन मिल रहा है ना, उसका जो वॉल का सरफेस मिल रहा है ना, सो फ्रॉम देयर इट इज पिकिंग इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. गॉट इट? एंड नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई, लेट्स से अब मुझे यहाँ पे भी एक और अप्लाई करना है. सो देयर इज अनदर मेथड. गो टू योर आर्किटेक्चर टैब. हियर कम्स योर वॉल स्वीप ऑल्सो. यहाँ पे भी मैं उसको एक right now it is a cornice, so you can apply a cornice on a wall. It was not coping, basically it was cornice only. And मुझे इसकी प्रोफाइल चेंज करनी है. सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉर्निस, गो टू इट्स एडिट टाइप, एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द प्रोफाइल जो मैंने अभी लोड कराई थी. इफ यू वांट टू कीप इट टू कोपिंग, you can keep it to coping, apply and OK. So it has been inserted. यहाँ से आप उसकी हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने हाइट पे रखनी है. राइट नाउ इट इज 2900. यू कैन कीप इट टू लेट्स से 1000 ओनली एंड अप्लाई. क्लियर? और इसमें अभी कोई मटेरियल स्पेसिफाइड नहीं है. गो टू इट्स एडिट टाइप एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्पेसिफाई द मटेरियल ऑफ दैट कोपिंग ऑल्सो. So let's say I'm keeping it to any random material I'm picking. So let's say this has become a copper. So that's how it has been applied. आपको wall के इस face पे apply करना है. So you can apply another coping over here. Go to your wall sweep. Wherever you want, you can apply. Okay. यहाँ तक clear है? अब if we talk about a reveal part, आप section भी देख सकते हैं इसका. If we talk about reveal part, आर्किटेक्चर एंड नाउ गो टू वॉल रिवील. रिवील क्या करता है? आपकी वॉल को वहां से उतना कट कर देता है. सो आप देख सकते हैं आपकी वॉल उतनी कट हो गई है. जैसे ही लेट्स से आई एम पिक दिस रिवील पार्ट एंड आई विल स्पेसिफाई अ प्रोफाइल ऑफ माई वॉट एवर प्रोफाइल आई हैव क्रिएटेड. कोपिंग मुझे ऐड करनी है तो वो वॉल को उसी मैनर में कट कर रहा है. सी दिस थिंग. गो टू इट्स एडिट टाइप, change another profile, let's say keep it to some C channel. Okay, it is cutting the wall in that manner only. Okay, so that's how reveal works. Again, pick your reveal, go to its edit type and change the profile. Let's keep it to some circular. So it is cutting my wall in this manner. Reveal आपका ऐड होगा, आपको यहाँ पे जाएंगे, आपको wall reveal मिलता है. So whichever profile you want to insert, you can simply insert to a particular face. ठीक है. अब मुझे इसकी प्रोफाइल चेंज करनी है. गो टू इट्स एडिट टाइप एंड आई कैन चेंज द प्रोफाइल. नॉट सर्कुलर यू वांट, यू कैन वांट अ स्टेप. जो भी आपके पास प्रोफाइल इंसर्टेड है आप वो एग्जैक्टली रन करा सकते हैं. और वो उसी मैनर में आपकी वॉल को कट कर देता है. डन.
another profile if you want. मैंने skirting की भी even बनाई थी. If I insert it in a reveal part, let's say I'm inserting a 150 mm high reveal, so आपकी wall उसी manner में cut हो गई. Okay? हाँ, correct, correct. Okay? So next topic is your floors. उसको अभी पढ़ा दें कि उसको आगे के लिए रखते हैं? ठीक है, ठीक है. Okay, thank you.